जामा मस्जिद के बिजली के बिल पर वायरल झूठ, जिसे 2017 में रिपब्लिक टीवी ने खबर बना के दिखाया था। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद दिल्ली का बिजली बिल आजादी से लेकर अभी तक नहीं भरा गया है। ये ट्वीट सुधीर चौधरी के नाम से बनाए गए एक पैरोडी हैंडल से किया गया था, जिसे डिलीट किए जाने से पहले 3000 से भी ज्यादा बार शेयर किया गया। असल में ये दावा अभी से नहीं 2017 से किया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी ने रिपोर्ट किया था कि जामा मस्जिद की बिजली बिल जमा न करने के कारण काट दी गई है। इस रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी ने पूछा था, इमाम बुखारी के पास लग्जरी कारें खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन वे बिजली का बिल नहीं भर सकते। रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने कैमरा मस्जिद की तरफ घुमाते हुए कहा, मस्जिद के अंदर पूरी तरह अंधेरा है। उसके बाद चैनल क्रू इमाम बुखारी के घर से बाहर गया और बाहर खड़ी कारों की गिनती करते हुए उनके मॉडल्स के बारे में बताने लगा। ये पोस्ट कार्ड यूज और हिंदुत्व के हैंडल से फैलाई गई फेक न्यूज थी, जो नेशनल चैनल पर चल रही थी। आइए सोशल मीडिया पर फैली उस खबर के बारे में जानते हैं, जिसमें कहा गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद का 4 करोड़ रुपए का बिल नहीं भरा गया है, जिसे रिपब्लिक टीवी ने भी रिपोर्ट किया। और जूस के द्वारा एक्सपोज किए जाने के बाद रिपब्लिक टीवी ने ऊपर वाला ट्वीट बिना माफी मांगे और बिना किसी स्पष्टीकरण के डिलीट कर दिया। नीचे लगा वीडियो रिपब्लिक टीवी की ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो की कॉपी। Well, we are right outside Delhi's Jama Masjid. Views right behind me is that electricity is out inside, but outside Jama Masjid, you could still see this main street light. But inside Jama Masjid, electricity has been cut out, and it's a complete blackout inside Jama Masjid. We are right in front of gate number 3. And if I could just request my video journalist Aman to pan across, that's the light on the main gate. We are just going to go across, try to show you how lights are still running outside Jama Masjid, but inside Jama Masjid, it's a complete blackout. You could see this light. It's only because of this street light, which is right outside gate number 3 of Jama Masjid. And we've come out because on my right, beyond this cavalcade of luxury cars of Shahi Imam Bukhari, is the residence where it's mentioned gate number 7. That's the residence of Shahi Imam Bukhari. And the cavalcade of these luxury cars from Audis to BMWs, the man does not have money to pay the exuberant amount of 4 crores plus, which has been pending for over years for this, one of the biggest and most popular mosques, not only in India, but across Asia. Yes, this is Delhi's Jama Masjid, and the electricity bill has not been paid. BSES has given the strongest jolt ever possible to Shahi Imam Bukhari, who has money for that matter, because that car which you could just see on your screens does not even have a number plate. So that's a newly procured car right there on your screens, which is standing in the cavalcade of cars of Shahi Imam. And on the left, a luxury SUV, but the man doesn't have money to pay for the electricity bills of Jama Masjid. He says that it's technically a Waqf board property, and as Waqf board gets rent out of this, Waqf board should be paying. But then who will give answers to thousands and lakhs of devotees, people who come and pray inside one of this biggest mosques in Delhi? With festivities right around the corner, BSES has been forced to cut out electricity of this biggest and one of the most popular mosques in the national capital and in India in turn, that is Delhi's Jama Masjid. मस्जिद का बिजली का बिल न जमा किए जाने की बात 2012 के बाद से हर कुछ महीने पर सामने आ जाती है। पिछली बार ये गुरमीत राम रहीम सिंह की सजा का ऐलान होने के बाद बिना मतलब की तुलना करने लिए निकल कर आई थी। पिछले ट्वीट में ये नहीं कहा गया कि ये हाल ही की खबर थी। एरन बिट्स नाम के एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि दिल्ली की जामा मस्जिद और इसकी 2000 दुकानों की बिजली का बिल 1947 से नहीं भरा गया है। इस ट्वीट में खबर का कोई लिंक नहीं था, लेकिन जो ऐसी खबर का इंतजार कर रहे थे उन्होंने इस ट्वीट को हाथों हाथ लिया। ट्वीट को 3700 से ज्यादा बार शेयर किया गया। सोर्स के बारे में पूछने पर एरन बिट्स ने इंडियन एक्सप्रेस का 2012 का एक आर्टिकल शेयर किया। आर्टिकल में कहा गया था कि जामा मस्जिद का 4.16 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जो पिछले कई साल से जमा नहीं किया गया है। आर्टिकल में इस बात का जिक्र था कि जामा मस्जिद के शाही इमाम और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच में विवाद है। दोनों ने बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हुए कहा था, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग परेशान होते हैं क्योंकि बिजली सप्लाई कंपनी BSES बकाया भुगतान न करने के कारण अक्सर बिजली काट देती है। जहां फेक न्यूज शेयर होने की बात आती है, पोस्ट कार्ड यूज झंडा उठाए नजर आता है। इमाम बुखारी को बड़ा झटका। BSES ने बिजली का बिल बकाया होने के चलते काटी बिजली हेडलाइन के साथ दावा किया। ऐसा लगता है कि बाबाओं और इमाम के भारत में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस आर्टिकल में बताया गया, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक दिल्ली की जामा मस्जिद 4.16 करोड़ रुपए बिजली का बिल न जमा करने की वजह से अंधेरे में डूब गई है। इस स्टोरी में BSES और वक्फ बोर्ड के बयानों का इस्तेमाल किया गया था। ये बयान 2012 से उठाए गए थे और किसी सोर्स या तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। हिंदू सन्नाहती के प्रेसिडेंट तपन घोष जैसे लोग
जो पोस्टकार्ड्स को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने इसे सबूत की तरह कोट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में भारत बदल रहा है। ये ट्वीट अब डिलीट हो गया है, आर्काइव यहाँ देखा जा सकता है। ऑल्टूज की पड़ताल। ऑल्टूज ने BSES के प्रवक्ता से बात की। उन्होंने कंफर्म किया है कि बिल बाकी होने की वजह से कोई पावर कट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ये फेक न्यूज है। जामा मस्जिद में पावर सप्लाई हमेशा की तरह सामान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने ये निराधार अफवाहें फैलाई हैं। उन्होंने ऑल्टूज को बताया कि ये मामला 5 साल पहले था और तभी सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा कि 2012 में मस्जिद और वक्फ बोर्ड के बीच में लंबे समय से चला आ रहा बिल भुगतान का विवाद सुलझ गया था। ऑल्टूज ने इमाम बुखारी के छोटे भाई तारिक बुखारी से बात की। बुखारी ने इसे सिरे से खारिज करते हुए बताया कि ट्विटर पर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने भी कंफर्म किया है कि BSES ने बिजली नहीं काटी थी। उनसे पूछा गया कि रिपब्लिक टीवी की फुटेज में दिख रहा अंधेरा मस्जिद में किस समय का है। बुखारी ने कहा कि वो निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में तेज रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 3 नंबर गेट शाम की नमाज के बाद बंद कर दिया जाता है और मेन गेट से मस्जिद में जाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप फुटेज को ध्यान से देखें, सीढ़ियों पर और अंदर रोशनी दिखाई देती है। रात को ईशा की नमाज के 1 घंटे बाद मस्जिद बंद की जाती है। उसके पहले तक मस्जिद में पर्याप्त रोशनी रहती है। BSES द्वारा जामा मस्जिद की बिजली काटे जाने का सोचकर दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ट्विटर हैंडल्स का खुशी से उछलना और फेक न्यूज फैलाना तो समझ में आता है, लेकिन नेशनल टीवी चैनल से बेहतर काम की उम्मीद की जाती है। 4.16 करोड़ रुपए के बकाया बिल और इमाम और वक्फ बोर्ड के बीच का विवाद 5 साल पुराना है। बुखारी और BSES दोनों ने कंफर्म किया है कि पावर सप्लाई नियमित थी और कोई पावर कट नहीं किया गया। BSES ने पहले ही ट्वीट करके बताया है कि जामा मस्जिद की ये कहानी पूरी तरह झूठी है। रिपब्लिक टीवी को बिल न जमा करने की बात BSES से पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए थी, तब स्टोरी चलानी थी। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।